रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम. Assalamu alaikum. Hope all of the guys that you are doing well. Today we are going to have an interview with our teacher and Sir Abdul Majid. He 3 times qualified the CSS exam and several exams regarding the provincial as well as the federal exam he has qualified. And today we have discussion about few questions we will ask from Sir regarding the CSS preparation and regarding all over the CSS exam. So we are starting our today's discussion with an initial question that about the CSS exam, what the CSS exam, the eligibility of the CSS exam, and what it about the whole aspects of the CSS exam. Sir, Assalamu alaikum. We are welcoming you on the behalf of our platform. Yes. Regarding, we have sir generally discussion about the CSS exam. So tell us please about the CSS exam, all over the CSS exams. What are the eligibility criteria of this exam? The whole dimensions about the CSS exam, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. First of all, thank you, Azhar bhai, giving me such a chance to discuss on several competitive exams such as CSS and PMS. So CSS and PMS, they are two big exams of Pakistan and provincial commissions. Also, other commissions are included, which we call SHA Commission, Central Superior Service. First of all, मैं ये कहूँगा कि yesterday, before yesterday, रिजल्ट आया CSS का, तो ये मेरी सजेशन होगी जो भी मेरे कैंडिडेट्स हैं, विदाउट कैंडिडेट्स हैं, जो भी CSS एस्पायरेंट हैं, उसके लिए सजेशन ये है कि दे डोंट फील कंफ्यूज और दे कहने का मकसद वो परेशान कभी ना हो. अल्लाह की जो रहमत है वो बहुत बड़ी है. ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह से खुद कुरान में कह रहा है, जो उसका किताब है जो हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाज़िल हुआ, अल्लाह ताला ने मेरी इतनी रहमत है आप कभी मायूस ना हो. और हमारे इस्लाम में यही है कि मायूस है वो सब कुफर है, और मायूसी आपको बैकवर्ड लेके जाएगी, फार नहीं लेके जाएगी. तो कहने का मकसद अल्लाह पे रखो, जो आपकी स्ट्रगल है उसको कैरियर रखो. ये बड़ा एग्जाम है पाकिस्तान का, तो इसको आप मज़े से एक प्रॉपर प्लानिंग हो, कंसिस्टेंसी हो, उसको लेके चलो. फिर आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हो. इसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपलसरी, 6 ऑप्शनल होते हैं, 12 ग्रुप्स होते हैं, 6 सब पे पास होता है, 300 का इंटरव्यू होता है, 100 पे पास होता है. तो इसमें ये होगा, मैं कहूँगा कि बंदा एक स्ट्रेटजी से बनाए, फिर वो इम्प्लीमेंट ऑन डेली बेसिस. फॉर एग्जाम्पल कोई इसमें जो इंग्लिश है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश में इस तरह होता है, रिजल्ट आया कि तकरीबन 97-98% दे आर फेल्ड इन इंग्लिश, बिकॉज इट्स लॉजिक है शुरू से अभी तक ये इनकी कोई स्ट्रेटजी है. दूसरे सब्जेक्ट्स उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जो CSS का ऐसे है, दैट इज़ वेरी ट्रिकी बिकॉज इट इज़ वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन होता है, 10 ऑप्शंस होते हैं, आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा और 40 आउट ऑफ 100 आपको उठाने पड़ेंगे. तो ओवरऑल इसकी एक स्ट्रेटजी है, इसका बनाने का एक प्रेजेंटेशन है, इसके 3-4 मेथड होते हैं, जैसे आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, किस तरह ये लिखने हैं. जब आपको वो बनाने आ गए ना, इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई. Sir, I have a question regarding this, that you are asking that the English is very crucial role in this exam. Yes. Definitely it has a crucial role, but how can aspirant understand that his English level is up to that mark that he can crack the exam, especially CSS, especially the 2 majority papers, most of the candidates fell in the English essay and pressing composition. Then how a candidate can improve his English up to that level that he can achieve his desired exam goal and pass the exam with the high marks? Yes. Please tell us about this. Nice question and very important question from Mr. Azhar. क्वेश्चन ये है कि जो CSS में ऐसे कंपो को हम किस तरह रिकवर करें, किस तरह क्वालिफाई करें, किस तरह तैयारी करके हम दोनों जो है टॉप जस्ट भी जो है 40 मार्क्स उठाएं. तो स्ट्रेटजी ये है
कि जो एसे का पेपर है, आप उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन के 3 तरह होते हैं, एक होता है वन लाइनर, सेंटेंस फॉर्म में, फ्रेज के फॉर्म में आउटलाइन होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मिक्स कर देते हैं, एक फ्रेम में लिखें, जहाँ आउटलाइन आप फ्रेज के फॉर्म में लिखें, सेंटेंस के फॉर्म में लिखें, जहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में लिखें, एक ही फॉर्म आप अडॉप्ट करें। अगर 2-3 करो मिक्स करोगे, फिर जो आपका ये जो इंट्रोडक्टरी आउटलाइन पे जो क्वेश्चन है ऐसे का, आपको ये पास फेस करेगा। लाइक एज अवर फेस शूज और एवरीथिंग। अब देखो ना, एक बंदा है, आप देख के बताओगे ये तो बहुत परेशान है। अगर एक बंदे को आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आपको ये ठीक है बंदा, कहने का मकसद जो आउटलाइन लिखने का अंदाज हो, कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन सी लाइन लिखनी, फिर इंट्रोडक्शन के लिखने का भी एक तरह का प्रोसीजर है। फिर अगर ये 2 चीज़ें आपकी सही हैं, इंशाल्लाह यू विल गेट 40 मार्क्स। और अभी कंपोजिशन पे आते हैं। कंपोजिशन में से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हार्ड क्वेश्चन है। अगर आपका पीसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह यू विल पास ऑन। सर ये तो सारी चीज़ें आपने माशाल्लाह हमें बेहतरीन तरीके से गाइड किया है। सर ये चीज़ बता दें कि जो है ना, एक बिगनर या इनिशियल लेवल पे कोई भी बंदा है वो अपनी इंग्लिश को ठीक करना चाहिए, तो उसको कौन सी रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं एफपीएससी की तरफ से, तो वो बुक कंसल्ट करे, या बहुत सी चीज़ें मार्केट में हैं, तो अभी ये सेग्रीगेट या उसको जो है ना एक रिकगनाइज करना कि ये मेरे लिए ठीक चीज़ है, ये कैसे पता चले? बहुत सी चीज़ें हैं कि मटेरियल को कैसे जो है बंदा एक तो लिमिटेड करे और उसको फॉलो करके आगे अपनी इंग्लिश को ठीक कर ले। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर सम एग्जांपल्स विद माय पर्सनल लाइफ। तो एक स्टूडेंट था मेरा यूनिवर्सिटी का, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, तो मेरे पास अकेडमी जैसे उसने बोला कि सर मैं ऐसे पढ़ूंगा और कंपोजिशन पढ़ूंगा, तो उसको मैंने कहा बाबा रिलैक्स है, इसके अलावा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेस कैसा है, आपको कोई किसी चीज़ लिखनी आती है, हाउ टू राइट समथिंग, तरीका नहीं है, डाल ऐसे लिखोगे। तो वो बिल्कुल छटपट हो गया, उसने नहीं। उसको मैंने कहा आप एक कोशिश करें, मुझे टेस्ट दे दो। फिर मैंने उसको कहा कि आप यू राइट समथिंग ऑन पॉवर्टी, तो उसने पता नहीं क्या लिखा, किस तरह लिखा, कोई कुछ चीज़ का पता ही नहीं था। कहने का मकसद कि बेसिक के लिए, इनिशियल के लिए यही है कि आप ग्रामर से शुरू करें, वेरी बेसिक, व्हाट इज ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, रिमूव टू और प्रॉपर यूजेज ऑफ ओके। ये आपकी जब चीज़ें सही हो जाएंगी, फिर आप एडवांस लेवल पे चले जाओगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको जो प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, वो प्रॉपर यूज़ करने का तरीका ही नहीं आ रहा, तो फिर वो किस तरह वो क्वालिफाई करेंगे? तो कहने का मकसद वेरी बेसिक, आप शुरू से स्टार्ट करें, ग्रामर से, किसी टीचर को अच्छे को ज्वाइन करो, जाके आपका बेसिक जो है वो सही हो जाए। Sir, another question that arises in the aspirant's mind regarding the selection of the subject, especially about the optional subjects in the CSS exam, that majority of the candidates go for the scoring rank and most of the means, वो कहने का मकसद ये है कि जो है ना दूसरों की सुनी सुनाई पे अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑन द फाइनल डे जब रिजल्ट आता है तो वो देखते हैं हमारे जो है ना फलंक हो जाते हैं एक दो सब्जेक्ट में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट सिलेक्शन में स्पेशली जो सीएसएस में मल्टीपल ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको कैसे, कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे जो है ना सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाए? दैट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन सब्जेक्ट, बहुत सारे इसमें वो कहते हैं ट्रेन के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें या किस तरह। अब ये कहने का मकसद है कि आप ट्रेन पे ना जाएं, अब आप जो आपकी थिंकिंग है उस पे जाओ कि मैं अब ये सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, इंशाल्लाह आई विल ऑप्ट एंड इसको मैं जो है ना 40 प्लस उठा लूँगा, है ना। तो अगर आप देखो एक सब्जेक्ट किसी ने कोई 60 उसको लिया, अब वो जो सब्जेक्ट है मुझे बड़ा टफ लग रहा है, फिर मैं बिल्कुल उसमें पास ही नहीं होऊंगा। सब्जेक्ट हम वो उठाएं जिसमें हम खुद इंटरेस्ट आए, सही, यही बस इसके लिए है, सजेशन है। तो सर another question that answer writing is very crucial in this exam. But why majority of candidates lack this practice, especially in answer writing? They give a lot of time to the reading international and national and other magazines around them, whatever the stuff they have. They read a lot, but they have used to write a very little time, a very least time. सर इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आंसर राइटिंग पे जो है ना इतनी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत से कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं, तो उनको ये क्या करना चाहिए ताकि आंसर राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो इजीली पास कर सकें अपना एग्जाम? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये कह रहा है
कि जो हम रीडिंग पे बहुत फोकस देते हैं, राइटिंग में देते ही नहीं हैं। तो मैं आप सबको सलाह दे दूँगा, एडवाइस दे दूँगा कि जो CSS एग्ज़ाम है वो ओवरऑल राइटिंग रिटन स्किल का एग्ज़ाम है। जब आप जितना उसमें लिखोगे, आप में वो जो ग्रामेटिकल एरर है, वो जो आपकी मैच्योरिटी है उसमें इजाफा करेगी। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो काइंडली लिखें, इंशाल्लाह दिन भर। और लड़के वही पास हो रहे हैं, लड़कियाँ वही पास हो रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट 3-4 अटेम्प्ट करते हैं, वही पास होते रहते हैं। उम्मीद है बहुत सारे, मैं 6-7 साल लाहौर रहा तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, वो बस पढ़ते थे, लिखते नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे थे जो अटेम्प्ट ही करते रहे, अटेम्प्ट किया, किसी को चेक करवाया, वो निकल गए, जो पढ़ रहे थे वो नहीं निकले। कहने का मकसद जो CSS एग्ज़ाम है ये राइटिंग और रिटन स्किल्स है, तो फोकस ऑन दिस। एक दूसरा क्वेश्चन भी सर राइज होता है कि जो है ना बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहला अटेम्प्ट दे देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है तो अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट पास द एग्जाम और डीमोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद मोटिवेशन लेवल उनकी डाउन हो जाती है। तो उनको कैसे मोटिवेशन लेवल अपनी मेंटेन करनी चाहिए ताकि एग्जाम को आगे सही तरीके से कर लें, इसके लिए सर आप क्या जो जैसे लाइफ इज़ अ नेम ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर, वो उनके लिए ये सजेशन है कि कुरान शरीफ में ट्रांसलेशन और रीड मोर द डेली बेसिस। उसके अलावा जो वो अपनी हिम्मत हार बैठते हैं ना, इसका मतलब वो नाकाम हो गए, वो अब उसको दोबारा चांस मिल रहा है, तो वो हिम्मत करे, अल्लाह पे यकीन रखे और मायूस ना हो, तो दोबारा इंशाल्लाह वो कहते हैं ना फेलियर्स आर द बिल्डर्स ऑफ नेशन। ये बड़े कोटेशंस है। जो भी फेल हुए हैं, जिस तरह हम कोई अमेरिका का एग्जांपल ले लें, चाइना जापान का लें, तो बहुत सारे इनके जो प्रेसिडेंट हैं फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, फिर वो इस तरह इनिशिएटिव लेते हैं, फिर वो दोबारा उस पर आ जाते हैं। कहने का मकसद कि दोबारा उनको अल्लाह में यकीन रखें और अच्छे काम करें। और तंज होगा, नो डाउट तंज आपको इतना होगा, जब आप DMC किसी का शेयर करोगे ना, तो वो कहना यार इसमें फेल हो गया, वो हो गया, लीव ऑल चीज़। मैं कह रहा हूँ आपको अपने DMC ना दिखाएं, अल्लाह पे रखो, जो होगा बेहतर होगा, इसमें नहीं अगले में इंशाल्लाह। अगला नहीं तो लास्ट नहीं तो ओके भी जगह होगा ना, वो तो बेहतर जानता है ना, वो तो बेस्ट प्लानर है। सो बिलीव इन गॉड, इंशाल्लाह ऑल विल बी वेरी नाइस। सही। फाइनल यही जो है ना आपसे क्वेश्चन है कि जो है ना आपका क्या, व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल ऑफ द एस्पायरेंट्स रिगार्डिंग दिस एग्जाम एंड द होल जर्नी स्पेशली CSS, आपका क्या मैसेज है टू द ऑल एस्पायरेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान? हाँ, यस, मेरा मैसेज स्पेशली CSS और PMS जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये है कि जब आप इस समंदर में आ जाते हो ना, जो सोशल एक्टिविटीज़ है ना, खुदा का वो अपनी ख़त्म करें। एक आप प्लान बनाएं, नोट्स बनाएं और नमाज पढ़ें, तिलावत करें, दुरूद पढ़ें, और उसके अलावा यही आपका काम हो। बस ये 3-4 चीज़ें हो, इंशाल्लाह 2-3 साल में आप रिकवर कर जाओगे इंशाल्लाह। सो दैट इज़ माई लास्ट सजेशन। थैंक यू।